have gone up to triple pointer practicals, right? Students, you're all there or not? Hello? Yes, sir. Yes, please do ask. You are free today. Right now, I'm talking in general. So if you are having any doubts, queries, please do ask. Right? कि sir ये क्या होता है, वो क्या होता है, please. And it's very necessary that you should know these things in advance. As I have been telling you, मैंने पहले भी बताया कि आप लोग क्या करना है, फर्स्ट ईयर को एक्सप्लोर करना है. एक्सप्लोर मतलब कि बाबा जब हम थर्ड ईयर में आएंगे तो हमारे पास कौन कौन सा साइड में, कौन कौन सी ब्रांचेस में, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में अच्छे जॉब अवेलेबल होंगे. हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रहना चाहिए, हमें मशीन लर्निंग में रहना चाहिए, या डीप लर्निंग में रहना चाहिए, या बिग डेटा में रहना चाहिए, क्लाउड में रहना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी में रहना चाहिए. वेयर, विच सब्जेक्ट, विच ऑन, एंड एट द सेम टाइम दैट द सब्जेक्ट विच आई एम सेलेक्टिंग, इवन यू शुड लाइक दैट सब्जेक्ट. ठीक है, हमें भी हमारा सब्जेक्ट पसंद है, तो आउट ऑफ सो मेनी सब्जेक्ट्स किस में हमको इजीली जॉब मिलेगा, एंड एट द सेम टाइम वो जो सब्जेक्ट होना चाहिए उसका भी फ्यूचर होना चाहिए. दैट मीन्स nowadays the people are saying that the data science is a future, right? Under data science, which subject comes? Your machine learning, your AI, your deep learning, so many subjects used to come. So data science is a future now, right, students? Hello? कोई कुछ बात ही नहीं कर रहा है, कुछ क्वेश्चन ही नहीं है रेज करेंगे. अनिल जी, Ajil, are you there? Sir. Yeah, somebody, Ifat has raised some question, I suppose. Sir, can you please revise recursion? Oh, she's asking, sir. Yes. चलो पहले हम दूसरी भी बात करें तो if you wanted to ask any question, I think today you are having test as well, right? Yes. So anybody wanted to ask any question in this? I mean, with respect to your doubts, So she's asking, sir, can you revise recursion? I told Ifat recursion is nothing but the calling itself. When you're calling the same function itself, that is your recursion, that is the definition. And then we wrote one program calling itself, same function you are calling again and again, that becomes your recursion. I'll explain you with the help of a program now, calling itself. And what are the various examples we have taken? We have taken many examples for recursion. Right? Recursion, calling itself is a recursion. कभी कभी बहुत सारे रियल लाइफ के क्वेश्चन आंसर वी यूज्ड टू टेक फ्रॉम आवरसेल्फ. बाबा इसका आंसर क्या होगा? लाइक व्हेन यू आर राइटिंग एन एग्जाम इन योर एग्जाम सेंटर, तब हम जो इन फ्रंट ऑफ द सुपरवाइजर, वी आर नॉट रिफरिंग टू एनी फ्रेंड्स और द नोटबुक और दैट नोट्स और एनीथिंग. यू आर कॉलिंग योरसेल्फ टू राइट दैट आंसर every time. चलो आगे क्या है? What is the next line? What is the next point? Next point, next point. So you're calling yourself is a recursion, right, students? Let me go back. Yes, sir. और कहाँ पे हम लोग रिकर्शन करते रहते हैं? हाँ स्टूडेंट्स, हर एक फील्ड में आई सपोज एवरीवन, सब लोग रिकर्शन करते रहते हैं. डॉक्टर अपना अगर क्लिनिक में है या ऑपरेशन थिएटर में है, पेशेंट के सामने, वो फिर दूसरे को नहीं पूछता कि बाबा दिस ऑपरेशन इज गोइंग ऑन, आगे क्या करना है. ही नोज कि व्हाट इज टू बी डन नेक्स्ट, बिकॉज वट एवर ही और शी हैज लर्नड इन हर ड्यूरिंग आई मीन दिस इन द स्टूडेंट लाइफ, दे शुड परफॉर्म द सेम थिंग. रिकर्शन. कोई भी इंजीनियर हो जो भी पढ़ के आता है आगे, वो फील्ड में रिकर्शन करता है, राइट? Everybody in whichever subject, whatever they are learning, they are calling themselves बाबा ये कैसे होगा, whatever, right? Students, this is student अपनी लाइफ में पढ़ के आते हैं, जो एग्जामिनेशन के टाइम में रिकर्शन करते हैं. एंड when you'll join the company also, then also you'll be doing recursion. ये प्रोग्रामिंग कैसे होगा, right? ये क्या मैंने पढ़ा था. So you're calling yourself every time. Recursion. Is my board is visible, students? Yes, sir. Okay. Recursion. So, Ifat, can you revise this definition? Calling itself, right? Calling, very simple. खुद को कॉल करना ही हम लोग रिकर्शन बोलते हैं. और एक दो बात हुआ था. क्या बात हुआ था? एक प्रोग्राम हम लिख देते हैं तो समझ जाएगा. ये मेन है,
और हमने फैक्टोरियल लिखा था यहाँ पे, एक इंटीजर नंबर रहेगा और इसका आंसर इज गोइंग टू बी लॉन्ग इंटीजर रहेगा, फैक्ट, फैक्ट, ओके, लॉन्ग इंटीजर फैक्ट। सो जो फैक्टोरियल फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे लॉन्ग इंटीजर फैक्टोरियल, आई विल से हियर, इसको हम लोग इंटीजर देंगे और इससे आंसर लेंगे लॉन्ग इंटीजर। लुक एट दिस, इनपुट इज इंटीजर एंड आउटपुट इज लॉन्ग इंटीजर। और इसके बाद में क्लियर स्क्रीन किया एंड प्रिंट एफ, एंटर एन इंटीजर, स्कैन एफ, एक नंबर हमने ले लिया एंड देन आई एम कॉलिंग माई फैक्ट नाउ, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्टोरियल को ये मैंने नंबर दे दिया and then factorial has to give me the answer. That answer I'll store it in fact, and very simple, I'll say that factorial of that number which is percent %d is answer is LD, so that number is n and answer is fact, and that's all. Get ch, हमने एक दो नंबर और प्रोग्राम किए थे adding natural numbers from 1 to n. So now I have to write long integer factorial integer x, right? Now your recursion starts. If x is equal to 1, right? If x is equal to 1, or even I'll include 0 also, because user might enter 0 and they wanted to know what is the factorial of 0. So if x is 0 or x is 1, either x is 0 or x is 1, I'll say return 1. Else x into factorial of x minus 1, right? Return x into fact is equal to तो यहाँ पे भी एक वेरिएबल देना पड़ेगा लॉन्ग इंटीजर फैक्ट, एंड एट द एंड आई विल से रिटर्न fact and close this. So here you remember that we took one example for maybe 6 का लेना है, जितना भी लेना आप ले लो। यहाँ पे यूजर ने 6 दिया तो वही 6 आपका यहाँ पे आ जाएगा, कॉपी हो जाएगा, ये जो 6 यूजर से रीड किया था। So I want the factorial of 6. So just have a look here. यहाँ पे देखो आप, is x is equal to 6, is x is equal to 1, is 6 is equal to 1, is the number is 1 right now? No, my number is not 1 now, my number is 6. So it is not 1, not 0. So what will happen in this line? यहाँ पे क्या हो जाएगा वो? यहाँ पे हो जाएगा वो factorial is equal to 6 into factorial of 5, right? यहाँ पे क्या हो गया? Factorial of 5. तो ये आपने क्या किया? आप खुद को बुलाया यहाँ पे। तो ये देखो फैक्ट, यहाँ पे आप जब नंबर दिए 6 गया, अब आपने 5 दे के फिर से कॉल किया, राइट? Is x is 1? No sir, it is not 1. So what it is? It is 5 right now. 5 है तो now x has become 5. So right now what will happen? अब ये फैक्टोरियल किससे रिप्लेस करेगा? ये जो पार्ट है ये तो ऐसे ही रहेगा। अब ये हो जाएगा 5 into फैक्टोरियल 4, राइट? तो ये फैक्टोरियल 4 यहाँ पे अब 4 हो गया। पहले देखो, समझ रहे हैं ना स्टूडेंट्स? हेलो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू आर कॉलिंग अगेन योर सेल्फ एंड यू आर पासिंग द नंबर व्हाट? नॉट 5, नाउ यू आर पासिंग 4, राइट? What are you passing right now? 4. So is the number is 1 right now? No, it is not 1. So what is your number? My number is 4. So अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 into factorial 3. मतलब पहले जो है वो तो रहेगा ही, 6 into 5 into 4 into, अब क्या हो गया? factorial 3. So like this, next time ये factorial 3 को रिप्लेस करेगा, किससे रिप्लेस करेगा? 3 into factorial 2, right? Yes or no? इफात समझ रहा है कि नहीं? Yes, sir. And next time it is going to replace 4, 3, 2 into factorial 1. Factorial 1. Now जब 1 जाएगा वहां पे, तो देखो जरा, जब 1 वहां पे आता है, so 3 को भी कैंसिल किया, 2 भी कैंसिल हुआ, now it is 1. So is the factorial is 1? Sorry, is the number is 1? Yes, it says 1. तो बोलता है फिर एक काम करो, रिटर्न 1. अब ये रिटर्न किसको जाता है? आपको पता है रिटर्न किसको जाता है? हमेशा फैक्टोरियल को जाता है। फंक्शन को पता चल गया कि रिटर्न क्या है? 1.
तो इसका जो ये जो नंबर है यहाँ पे, ये वाला, ये यहाँ पे क्या रिटर्न आया, इसको क्या पता चला, 1 आया, राइट? यस और नो? फैक्टोरियल को क्या मिला वहां से, 1. So before that, whatever numbers are there, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So what is your answer then? 720, right? I hope you are getting my point. Yeah. Yes, this is what the point is. Factorial of 6 is 720. So what is happening? See, look at this. Factorial was calling itself every time. When you gave 6, so it has become 6 into, it has called for factorial 5. When it became 5, it has called for 4, 3, 2, 1. So many times it has called factorial 5, 6, whatever it is. Ifat, right? तो इसमें क्या डाउट्स है? इसमें क्या डाउट्स है? And दूसरा, today being the exam, I have set easy question because बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि सर बहुत डराते रहते हैं, राइट? ऐसा लगता है क्या, सेल्विन, कैफ? नो सर, ऐसा नहीं ना. तो एक्चुअली आपको कोई भी टीचर को यही बोलना चाहिए कि सर हमारा एग्जाम टफर लो, बिल्कुल टफ लो, बिल्कुल टफ लो. टफ क्यों लेना है भाई तुम्हारा एग्जाम? हाँ स्टूडेंट्स, जैसे कि मान लो आप कोई एकेडमी में सीख रहे हो, स्पोर्ट्स सीख रहे हो, क्रिकेट सीख रहे हो, बैडमिंटन सीख, जो भी हम सीखते हैं स्टूडेंट्स, ये देखो ये कौन है बाबा. तो वो वहां पे अगर कोई टीचर ऐसे ही थोड़ा थोड़ा लो लेवल में पढ़ा के जाएगा तो आप कभी भी, आपका वहां पे कभी सिलेक्शन होगा क्या रियल लाइफ में? एक आप अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकते हो क्या, बोलो ना? अगर टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाएगा, सबसे अच्छा पढ़ाना चाहिए, सबसे टफ पढ़ाना चाहिए, और आपकी एग्जाम भी बहुत टफ होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन के चांसेस है, राइट स्टूडेंट्स? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपका जो कोच है थोड़ा एक्स्ट्रा कराना चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा हार्डवर्क कराना चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा, मतलब सबसे ज्यादा अगर आप नंबर 1 पे रहना चाहते हो तो आपको एग्जाम भी उतना ही डिफिकल्ट देना चाहिए, तभी आप नंबर 1 हो सकते हो. और जैसे उसी के लिए मैं आज बात कर रहा था आप लोगों से कि कोई भी कंपनी 5%, 10 तो रेयर केसेस में रहता है, 10% सिलेक्शन करते हैं बस. तो अगर वही मैंने बोला कि लाइक अगर कंट्री वाइज बात करेंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर डूइंग योर आईटी एंड सीएस राइट नाउ, बीसीए, बी in computer science, so many sub courses are there, right? So many lakhs of students are there, and मतलब अगर हर एक कॉलेज का अगर 100 बच्चे भी पकड़ोगे, ओवरऑल इंडिया में ही कितने कॉलेजेस है स्टूडेंट्स, आईआईटी ये सब लेके दुनिया भर का कितना कॉलेजेस है हमारे पास में, राइट? अगर 1000 भी कॉलेज पकड़ते हो और 100 बच्चे भी लेते हो, 1000 से तो ज्यादा ही है, 10,000 से कम नहीं होंगे कॉलेजेस, राइट? क्योंकि अराउंड 800 कॉलेजेस तो मुंबई यूनिवर्सिटी में है, 800 एक यूनिवर्सिटी में. स्टूडेंट्स आप समझ रहे हो मेरी बात? 10,000 कॉलेजेस होंगे, अगर हर एक कॉलेज में 100 स्टूडेंट्स हैं तो मेरे पास 10 लाख स्टूडेंट्स होते हैं, 10 लाख. और अगर कोई कंपनी 5% सेलेक्ट कर रही तो मेरा सिलेक्शन कहाँ होना चाहिए, मेरा रैंकिंग कहाँ होना चाहिए आउट ऑफ 10 लाख? 5% मतलब 50,000 स्टूडेंट्स आर गेटिंग सेलेक्टेड, सो दैट मीन्स 9,50,000 स्टूडेंट्स का क्या, वेयर वी स्टैंड, whether we are in like top 5% में है क्या? लाइक जैसे तुम्हारा अभी तुमने नीट दिया, तुमने जेई देते हो, तो वहां पे किसका सिलेक्शन होता है? हाँ स्टूडेंट्स, हेलो, वहां पे एग्जाम जो तुम्हारी है, जो प्रिपरेशन, तो तुम्हारा इजी है कि टफर है? वाई तुमने प्रिपरेशन इतना हार्ड रखा था? क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए था, फिर भी नहीं हुआ. और वही चीज आके तुम अभी आईटी में यहाँ पे फिर से अगर टीचर को रिक्वेस्ट कर रहे हो या टीचर के बारे में उल्टा पुल्टा बात करोगे या कंप्लेन जैसा करते हैं हम कि अरे सर तो बहुत डिफिकल्ट पढ़ाते हैं, या फिर या तो सर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो स्टूडेंट जो टीचर, जो पेरेंट्स किसी के साथ स्ट्रिक्ट होता है ना, फ्यूचर उसी का बनता है, राइट? आई एम स्ट्रिक्ट नॉट फॉर माई सेल्फ, आई एम मतलब तुम्हारे फ्यूचर के लिए स्ट्रिक्ट है. फिर आप बोलो सर हमारे साथ जोक्स करो, मस्ती मजाक करो और पढ़ाई थोड़ा साइड में कर दो, देन हुज फ्यूचर आई एम स्पॉइलिंग, माई फ्यूचर और योर फ्यूचर? किसका फ्यूचर खराब होगा स्टूडेंट्स? तो क्या करना चाहिए, पढ़ाई को ऐसा थोड़ा और हार्ड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए?
हर एक सेमेस्टर में आपको ऐसे टीचर मिलने चाहिए जो कि सिलेबस से ऊपर जाना चाहिए, बिकॉज सिलेबस तो सभी बच्चे पढ़ के आएंगे. All 10 lakh students are going to study their syllabus. What you have extra, मतलब दूसरा और additional क्या है? The company will ask you one question like, why should I select you? तो आप बोलोगे सर आपने BSc IT किया, आपका 80% है, 60%. वो तो बोले बहुत सारे यहाँ लाखों बच्चों ने BSc IT किया या so many courses and having better percentage than you. Why should they select you? Ifat, what is your answer? Hello? Yes, sir. तो आंसर क्या होगा हमारा? क्यों भाई वो आपको प्लेसमेंट देना चाहिए? हाँ जी, Skill. स्किल. तो डू यू हैव दैट स्किल, एक्स्ट्रा स्किल? परसेंटेज सबके No, पास sir. होगा, हमारे पास एक्स्ट्रा स्किल है क्या? और वो एक्स्ट्रा स्किल कैसे आएगा? जब हम थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, आई मीन थोड़ा सिलेबस से प्लस करेंगे. लाइक मैं कैसे करते रहता हूँ, आई डोंट थिंक दूसरे टीचर करते होंगे. करते हैं क्या थोड़ा ऊपर? हेलो इफत, कोई भी टीचर अपने सिलेबस से ऊपर चलता है क्या? मेरा ये बोलना है. नहीं चल रहा है तो आज तो वो तुमको चॉकलेट लग रहा है, वो तो तुम